انہوں نے 8 مہینے کی محنت سے اور بڑی زبردست ریسرچ کر کے ایک ایسی اینٹی ڈپریشن جیل بنائی ہے جس کو آپ اپنے ماتھے کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور چند منٹ کے اندر آپ کی جو ڈپریشن ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ اینٹی ڈپریشن ہی بنانے کا خیال کیوں ہے؟ کچھ اور بھی تو بنا سکتے تھے۔ پاکستان کے اندر کیا دنیا بھر میں ڈپریشن ایک ایسا مسئلہ ہے 6 میں سے 4 لوگ موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم ڈپریشن کے لیے سائیکالوجسٹ پتہ نہیں کہاں ہم مارے پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ ہم نے ایک اینٹی ڈپریسنٹ اسپرے بنایا، میں نے پتا چلا کہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے، پھر ایک اینٹی ڈپریسنٹ کریم بنائی اور پھر فائنلی اینٹی ڈپریسنٹ آئنٹمنٹ جیل بنائی جو کہ الحمدللہ بہت اچھی اور ایفیکیسی کے ساتھ بن گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ پاکستانی آئے روز اپنے ٹیلنٹ کا سکہ بنواتے ہیں۔ آج میں آپ کی ملاقات پاکستان کے سب سے چھوٹی عمر کے سائنٹسٹ سے کرواؤں گا جنہوں نے ڈپریشن کے مریضوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا تحفہ ایجاد کیا ہے، اور انہوں نے 8 مہینے کی محنت سے اور بڑی زبردست ریسرچ کر کے ایک ایسی اینٹی ڈپریشن جیل بنائی ہے جس کو آپ اپنے ماتھے کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور چند منٹ کے اندر آپ کی جو ڈپریشن ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں، اور اب ڈپریشن سے کیسے نجات پائیں گے، کون کون سے انگریڈینٹ ہیں جو اس اینٹی ڈپریشن جیل کو بنانے میں کام آئے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ مستقبل میں ان کے کون کون سے پروجیکٹ آ رہے ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر موٹیویشنل اور انسپریشنل سٹوری ہیں جنہوں نے خاص طور پر پاکستان میں ریسرچ کی مثبت فضا کو ایک اور زبردست قسم کی تقویت دی ہے۔ حمزہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد، آپ نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ جی سر، بالکل الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ اینٹی ڈپریسنٹ جیل میں نے بنائی، اور پاکستان کے اندر کیا دنیا بھر میں ڈپریشن ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ریسرچرز کے مطابق ہر 6 میں سے 4 لوگ موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ حمزہ کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ یہ سر آپ نے بتایا 8 ماہ، اس 8 مہینے سے پہلے کا بھی کوئی عرصہ ہے جس میں آپ ریسرچ کرتے رہے ہو؟ نئی ریسرچ جو ہے وہ پراپرلی ان 8 ماہ کے اندر سٹارٹ ہوئی اور پراپر ورک کے ساتھ، میکینزم کے ساتھ ریسرچ کی گئی۔ اور اس میں انگریڈینٹ کون کون سے ہیں؟ کیا کوئی ایسی بات کو شیئر کرو آپ جو آپ نے ریسرچ کی ہو اور اس میں آپ نے پھر اپلائی کیا ہو؟ جی سر، اس کے 2 انگریڈینٹس مین ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں، ایک یوکلپٹس لیوز اور دوسرا پوپی سیڈز۔ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کو میں نے جب انہیں اسٹڈی کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے، تو پھر میں نے انہیں ایک پراپر ریسرچ ورک کے بعد اور پراپر گائیڈنس کے ساتھ میں نے اس کو بنایا، جس کے اندر مجھے اسٹیپ ٹو اسٹیپ گائیڈنس تھی ڈاکٹر مینا الیاس کی، جو کہ میری مینٹور ہیں اور وہ مائکرو بایولوجسٹ ہیں۔ حمزہ، یہ اینٹی ڈپریشن ہی بنانے کا خیال کیوں آیا؟ کچھ اور بھی تو بنا سکتے تھے، اور یہ بڑا ایک یونیک قسم کا ایک نسخہ ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ویسے تو ہم ڈپریشن کے لیے سائیکالوجسٹ پتہ نہیں کہاں ہم مارے پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ سر، آئیڈیا ہی بیسیکلی جو ہے وہ مین چیز ہوتا ہے، اور آئیڈیا کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر آئیڈیا کے اندر بھی جو مین مجھے گائیڈ کیا وہ میری میم نے کیا، اور جو ڈاکٹر مینا الیاس ہیں انہوں نے ہمارا ایک ایپٹیچیوڈ ڈیولپ کیا ریسرچ کی طرف۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اندر جیسا کہ ایک سوسائٹی ہے ڈاکٹر سلطان سوسائٹی آف بایولوجی، تو وہاں پر ریسرچ کا ایپٹیچیوڈ ڈیولپ کیا گیا اور ڈیفرنٹ آرٹیکلز پر، ڈپریشن پر ریسرچ کے لیے بچوں کو ابھارا گیا، اور جب پھر ریسرچ کی تو پھر میں نے ایک پراپر ریسرچ ورک کے ساتھ ایک اینٹی ڈپریسنٹ آئنٹمنٹ جیل کو پریپیئر کیا۔ اس میں اس کو بنانے میں کتنی دفعہ آپ ناکام ہوئے؟ پروسیس کو ریورس کرنا پڑا؟ کتنی بار یہ ساری امبریلا ایکٹیویٹی چلی؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ناکامی ہوتی ہے وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، تو مجھے اس کے اندر 2 سے 3 بار مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فرسٹ اٹمپٹ میں آپ کا ہو جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم نے ایک اینٹی ڈپریسنٹ اسپرے بنایا میں نے، اور اس اینٹی ڈپریسنٹ اسپرے کو جب ہم نے بنایا، سنتھسائز کر لیا، تو ہمیں پتا چلا کہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے۔ پھر ایک اینٹی ڈپریسنٹ کریم بنائی، اور پھر فائنلی اینٹی ڈپریسنٹ آئنٹمنٹ جیل بنائی جو کہ الحمدللہ بہت اچھی اور ایفیکیسی کے ساتھ بن گئی۔ واہ! اچھا یار، یہ اب ہمارے چونکہ ایک ریسرچ کا کلچر نہیں ہے،
बहुत कम शाज़ व नादिर लोग कोई रिसर्च करते होंगे, घर वाले या क्लास फेलो या कोई साथ जुड़े लोग कहते तो होंगे यार पागल वागल है, क्या कर रहे हैं ये। घर वालों की तरफ से तो प्रॉपर सपोर्ट थी और वो बिल्कुल इस चीज को अप्रिशिएट करते थे कि रिसर्च वर्क जहां पर आप अपनी स्टडीज को परस्यू करते हैं उसके साथ आपको करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का खासा है कि वो ना सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों के अंदर भी अपने तलबा को एक मौका फराहम करती है कि वो इस मैदान में भी आकर अपना सिक्का मनवा सके। जनाब तखमीना तो हो गया कॉन्फिडेंशियल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि इसके अंदर जो इसके प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं दोनों इंग्रेडिएंट्स के, यूकेलिप्टस और पॉपी सीड्स के, उसको प्रॉपर वे में उन पर रिसर्च करके उन्हें स्टडी किया गया इसे बनाने से पहले। और उनको जब स्टडी किया गया और उनकी प्रॉपर एफिकेसी को स्टडी किया गया तो इसके अंदर यूकेलिप्टोल जिसको हम 1,8-सिनियोल कहते हैं साइंटिफिकली, वो एक बड़ा स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। जब इसे अप्लाई करेंगे आप, इसी वजह से ये आप अप्लाई करेंगे और ये अपना अफेक्ट शो करेगी। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो 1,8-सिनियोल बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारे डिप्रेशन को कम करने में। हमारे ब्रेन के अंदर जो एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज नाम का, और ये एंजाइटी को टैकल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसको टैकल करेगा। हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसके अंदर सेरोटोनिन का बहुत अहम किरदार है। ये मेडिसिन उसकी कंसंट्रेशन को टैकल करेगी और डिप्रेशन के अंदर एफिकेसी शो करेगी और डिप्रेशन को कम करेगी। कितनी देर में, मतलब अगर फ़र्ज़ किया कोई डिप्रेशन में है, उसकी अलामात क्या हैं, उसकी डिप्रेशन की क्या कोई ख़ास शक्ल आप बताएं कि उसके जब बंदा वो उस कैफियत पे चला जाए तो फ़ौरन ये डब्बी खोले और अप्लाई कर दे? डिप्रेशन एक प्रॉपर मर्ज़ है और बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ मर्ज़ है। आजकल के दौर के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डिप्रेशन के अंदर साइंटिफिकली इसकी जो सिम्टम्स हैं उनके अंदर एंजाइटी होती है, इंसान को बेचैनी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती उसे, उसकी बॉडी के अंदर जो उसका ब्लड प्रेशर होता है उसके अंदर मसाइल आते हैं और इससे जुड़े बहुत से मसले हैं जो उसे सामना करना पड़ते हैं तब जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और यार इसके बाद ये शाहकार बनाने के कोई ऑफ़र हुई? किसी इंजीनियर ने कहा कि यार मेरे पास आओ, फार्मूला शेयर करो अपना, इसको फिर बड़े लार्ज स्केल पे बनाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सी कंपनीज़ और हॉस्पिटल्स की तरफ से ऑफ़र्स तो हो रही हैं, बहुत सी तरफ से हुई हैं, मगर अभी तक फार्मूला तो कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है मैंने, इसका फार्मूला अभी तक मैंने नहीं बताया। इंशाल्लाह और कुछ फार्मूलेशंस हैं जिन्हें पूरा करने के बाद मार्केट में हम इंशाल्लाह आएंगे। तो इससे अभी तक कोई फाइनेंशियल कोई स्पॉन्सर मिला है, कोई हौसला अफजाई हुई है कि इसको और इसमें रिसर्च करो और आगे बढ़ो, किसी ने कुछ साथ दिया? असल में जब ये रिसर्च वर्क किया गया था तो इसका मकसद कोई पैसा हासिल करना नहीं था। ये एक रिसर्च वर्क था जिसके अंदर रिसर्च का एप्टीट्यूड बनना बहुत बड़ी बात होती है और रिसर्च वर्क के बाद हमें ये अचीवमेंट मिलना कि एक एंटी डिप्रेसेंट ऑइंटमेंट जेल का प्रैक्टिकली तैयार होना, ये एक अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एप्रिसिएशन मुझे बहुत मिली, मुझे मेरे कॉलेज की तरफ से अप्रिशिएट किया गया, मुझे सोसाइटी की तरफ से शील्ड मिली, सर्टिफिकेट्स मिले, बट फाइनेंशियली अभी तक ऐसा नहीं है। फाइनेंशियली होना चाहिए। अंदाज़ा क्या आपकी जानिब से क्या लागत है, ये सारा खर्च आपने किया है या यूनिवर्सिटी या सोसाइटी की तरफ से भी कोई एड मिली है? नहीं सर, इसका जो खर्च था वो तो मैंने खुद किया है। सारा खुद किया आपने? क्या कहने की, अगर मुस्तकबिल में क्या प्लानिंग्स हैं और कौन कौन से शाहकार हम देखने जा रहे हैं आपके? मुस्तकबिल के अंदर भी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहूँगा क्योंकि मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल का, और ये मेरा साल बहुत अहम है मेरी स्टडीज़ के हवाले से। तो मैं अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देना चाहूँगा। इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिले के बाद मैं बहुत सी रिसर्चेस करूँगा और बहुत से ऐसे मेरे पास प्लान्स हैं जिसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ। मसलन क्या क्या हो सकते हैं वो प्लान? वो प्लान्स, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर सिगरेट नोशी का मसला है, पाकिस्तान के अंदर और बहुत सी बीमारियां हैं जिसके ऊपर एक अच्छे मेंटोर की गाइडेंस में वर्क किया जा सकता है और रिसर्च होनी चाहिए इस तरह के मसलों पर। बहुत सी दवाइयाँ और अद्वियात हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर अद्वियात हम इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर रिसर्च को फ़रोग़ मिलना चाहिए। हमारे बड़े प्यारे कैमरा मैन हैं साकिब, जो अभी आपका ये शूट कर रहे हैं, यानी कि आप
चाह रहे हैं कि आपने मंशियात का ख़ात्मा कर देना है, और साकिब भाई के लिए ये जो आप सिगरेट वाली बात आपने कर दी, साकिब भाई कितने अरसे के बाद सिगरेट छोड़ देंगे? ये तो इंशाल्लाह जब रिसर्च की जाएगी और फिर तब पता चलेगा, और प्रॉपर वे में जब रिसर्च की जाएगी। चलिए जी, साकिब भाई समेत बाकी लोगों के पास भी चलें ये इन्फॉर्मेशन चलेगी। प्लानिंग क्या है, मुस्तकबिल में ख़ुद क्या करना चाहते हैं, आगे कितना बढ़ना चाहते हैं और सितारों पे कमंद डालना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो अभी एक डोर स्टेप था, ये ऐसा नहीं है, ये कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। इसके आगे बहुत सी रिसर्चेज और हो सकती हैं। मैं फिर अपने कॉलेज का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी का, कि जिन्होंने मेरा एप्टीट्यूड डेवलप किया रिसर्च की तरफ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ने। तो सबसे पहले तो मैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला लेकर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहूँगा। उसके बाद मैं इन रिसर्चेस को और ज़्यादा परस्यू करूँगा। पैरेलल बंदा स्टडी के इस पर वर्क कर सकता है। देखने वाले जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो नौजवान देख रहे हैं, जो आपको देख के ख्वाहिश कर रहे होंगे कि हम भी इसी तरह का अपने अंदर एप्टीट्यूड डेवलप करें, तो उनको आप कोई गाइड, कोई मशवरा देना चाहेंगे कि वो किस तरह अपनी रिसर्च शुरू करें और क्या कुछ उनके लिए लागत आ सकती है किसी भी रिसर्च, इस तरह की कोई मेडिकल साइंस की रिसर्च पे? बिल्कुल, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ को एनहांस करें। आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें ताकि आप अपनी सही मानों में अपनी सलाहियतों को उभार सकें। आप अपनी रिसर्च के लिए क्या करते थे? गूगल, इंटरनेट की तरफ जाते थे या लाइब्रेरियाँ खंगालते थे, क्या करते थे? इसके अंदर हमारे पास इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ई लाइब्रेरीज़ और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के भी। तो ज़्यादातर जो इस पे काम होता था, आर्टिकल्स जब हम पढ़ते थे, रिसर्च आर्टिकल्स, तो वो इंटरनेट से हासिल करते थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो बाहर से भी लोग उठा लेते हैं। अगर कोई बाहर से ऑफ़र आ जाए तो फिर निकल जाएंगे या पाकिस्तान में रहेंगे? वतन के साथ जो मोहब्बत है उसका तकाजा तो ये है कि वतन में रह कर काम किया जाए। तो इंशाल्लाह मैं यही चाहूँगा कि मैं कुछ भी करूँ, मैं अपने वतन में रह कर काम करूँगा। इसको अब ज़रा अप्लाई करें और ये ज़रा हमें बताएं कि किस तरह इसको लगाना है, और फिर कितनी देर के बाद जो डिप्रेशन में बंदा मुब्तला है वो ठीक हो जाएगा। इसको आपने जस्ट अपने फोरहेड पर अप्लाई करना है, और अप्लाई आपने इस तरह करना है, सिर्फ इतना कि ये आपके फोरहेड पर स्प्रेड हो जाए, सही तरह से आपके फोरहेड पर ये लग जाए, बहुत कम मिकदार के अंदर, सिर्फ बस इतनी मिकदार के अंदर आपने इसको लगाना है। जी बिल्कुल, इतना सा आप लेंगे, आप इसे अप्लाई करेंगे अपने फोरहेड पर, और ये बाकी काम ये खुद करेगी। हाँ, ये लगाने के बाद क्या कोई स्किन के ऊपर कोई ठंडक का एहसास होता है, कोई गर्म का एहसास होता है? भाई क्या होता है? बिल्कुल, इसके अंदर इसका एक अपना कूलिंग इफेक्ट है जो आपको फ़ौरन रिलैक्स करता है, और बाद में जो एंटी डिप्रेशन इसका काम है, एंटी डिप्रेसेंट, वो इसके इंग्रेडिएंट्स खुद करते हैं। वाह, देखने वाले इकबाल के शाहीनों को कोई पैगाम देना चाहोगे? वही मेरा तमाम जितनी भी तलबा हैं उनसे मेरा यही पैगाम है कि आप ज़रूर रिसर्च वर्क करें, और रिसर्च वर्क में आप पार्टिसिपेट करें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी साथ लेकर चलें। हमने स्टडीज़ को इस तरह से रखा हुआ है कि हम ये सोचते हैं कि इंटर लेवल में अगर कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। तो ये एक गलत सोच है जिसे हमें एरेडिकेट करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे थे। हम हमज़ा कामरान से आपकी मुलाकात करवा रहे थे, इकबाल के शाहीन, और बाकौल इकबाल के नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और पाकिस्तानी आए रोज़ यकीनन अपने काबिलियत के, अपने टैलेंट का झंडा गाड़ते हैं, और हमज़ा कामरान ने भी इसी तरह एक उभरती हुई फील्ड में अपने टैलेंट का झंडा गाड़ा, जिसका इस वक्त पाकिस्तान में इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दौरा होने वाला है। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।